चलो भाई, आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है? अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जब पढ़ाई सर्किट में हम लोगों ने लास्ट जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कितनी बैटरी कितनी पावर दे सकती है मैक्सिमम, और कब होती है वो मैक्सिमम पावर, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी, जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, मोर देन 2 सेल्स, मोर देन 5 सेल्स, ठीक है, एन सेल सारे करेंगे और उसका एक बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे जो अभी लास्ट ईयर जेईई में आया था। तो आगे पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या होती है कि बैटरी, let us suppose a variable resistance R is connected with a battery of EMF E and internal resistance small r, and current I passes through the external resistance. The question arises when the power transferred by the battery is maximum. Okay, then the conclusion of this, जो पावर ये बैटरी देगी और वो यहाँ कंज्यूम होगी, तो हम इस कंज्यूम मैक्सिमम पावर को निकाल ले तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है इस सर्किट के लिए। फॉर दिस सर्किट इफ यू वांट टू फाइंड द करंट, यू नो दैट बेसिक फॉर्मूला I is equal to E upon R plus R. I is equal to E upon R plus R, where I is the current and E is the EMF of the cell. Capital R is the external variable resistance and small r is the internal resistance of battery. And power consumed in external resistance P is equal to I square R. Then P is equal to I square R. When we put the value of I here from here, then P is equal to E square by R plus R2 whole square into R. But for maximum power transfer, for maximum value of P, dP by dR should be 0. It means first order derivative of power should be 0. So if dP by dR is equal to 0, we can write this equation like this. We transfer R plus R to power minus plus 2 in upper cases, and P is equal to E square R plus R to power minus 2 into R. Now we apply the product rule of differentiation first and second function. We know that dP by dr is equal to 0, then 0 is equal to, let us suppose this is the first function, this is a first function and this will be second function. Now the first function d by dx, d by dr of second function. What is the second function? Second function is capital R, and plus second function d by dr of first function. Okay, when we differentiation R with respect to R, it will be 1. Then E R plus R to power minus 2, it is also written as E square upon R plus R to power 2. Now for this x to power n and x to power n minus 1, now minus 2 इधर आ जाएगा और इसकी पावर minus 1 इंक्रीज करेगी, जो पावर क्यूब होगी और जो कहाँ है नीचे. So it is also written as, when we differentiate it, minus 2r E square upon R plus R2 whole. And this value belongs to 0 because we want to find the maximum power. Okay, if this belongs to 0, then this part and this part, whole part is common, and जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 minus 2r by R plus R is equal to 0. अब हमने इसको ट्रांसफर किया, 1 is equal to 2r by R plus R. Now we calculate small r is equal to capital R. When internal resistance of battery is equal to the external resistance of circuit, the power transfer is maximum. The power transfer is maximum. It is also known as maximum power transfer theorem. It is also known as maximum power transfer theorem. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, तो उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। पहले ये देख लीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, किसी भी बैटरी से मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर हो सकती है जब और केवल जब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डेरिवेशन है, इसको याद रखना है, याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं।
देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जेडब्ल्यू का है, उसको बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट है, ये सर्किट था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द पावर इज गिवन बाय द बैटरी इज मैक्सिमम, या पावर कंज्यूम इन सर्किट इज मैक्सिमम। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर आपको मैक्सिमम पावर अप्लाई करनी है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो स्मॉल आर के बराबर होनी चाहिए। बहुत बेसिक बात है कि नहीं? अच्छा गौर करिए, इस आर, ये थी, इस पूरे के सिस्टम के बराबर होनी चाहिए। तो वो कब हो सकता है? जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 और ये 2 आ जाए। और ये 2 कब हो सकता है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 3। वाई 6 3 इन पैरेलल, 6 3 प्लस 6 प्लस 3 यानी 18/9 दैट इज 2। अगर ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3। नाउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 3 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो 3, देन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सेम, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द पावर that is provided by the battery is maximum. Okay, have you any problem? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that battery provide the maximum power. Okay, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कई दिन से वीडियो नहीं बनाया है, उसकी वजह आजकल हम कुछ खाना बनाने के प्लान में रहते हैं। खाना मतलब अच्छा भोजन। जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कितना शौकीन हूँ खाना खाने का, वो भी दूसरों के हाथ का, ठीक है। आज हम आपका एक जो मिसकॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा दूर करेंगे। कभी कभी क्या है, बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीजों को अलग तरीके से एज्यूम करते हैं। वो चीजें क्या है वो यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा उन चीजों को। हम 3 डायग्राम बना रहे हैं और तीनों डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये डायग्राम ध्यान देंगे और इस डायग्राम के थ्रू मैं जो समझाना चाहता हूँ, एक्चुअल ये थ्योरी है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इससे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो आपके दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांतियां बैठी हुई हैं कि क्या किसको रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, हम लोग एक बात देख रहे हैं, ये 3 सर्किट है, सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, ठीक है। इसमें हम 3 चीजें निकालेंगे। सबसे पहले इनपुट पावर और एक आउटपुट पावर, ठीक है। इसमें इनपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? इनपुट निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले इनपुट के लिए सबसे पहले हमें आई चाहिए। इनपुट क्या होता है? इनपुट आपको जैसा लास्ट बताया था, इनपुट जो बैटरी प्रोवाइड करती है P इज इक्वल टू आई आर से निकाला जाता है, P इज इक्वल टू वी आई से निकाला जाता है। सबसे पहले आई निकालते हैं। आई क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5, सॉरी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, 10 अपॉन 2.5, सही है ना? करो भाई, कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आई इज इक्वल टू 4, एंड P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। What is the potential of the battery? EI, that is 10 into I, that is 4, that is 40. Now this is input power. This is input, and we have to find power output. Power output I square R
What is I square? I square. I is 4 into 4 into R, capital R. Capital R is 0.4. 4 4 is 16. That is 8. Okay. See. Next. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए. देखिए बेटा, इनपुट पावर हमेशा P इज इक्वल टू VI से निकालेंगे और आउटपुट पावर होगा वो I स्क्वायर R से निकालेंगे. ठीक है, जरा इसको देखिए. इसमें देखते हैं, पहले I निकालते हैं. I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, दैट इज 2.5. ओके, देन P इज इक्वल टू VI अगेन, इनपुट. ओके, V, व्हाट इज V? दैट इज 10. I 2.5, दैट इज 25. ओके, now P output. P output, we can say I square R. What is I? I is 2.5. 2.5 into 2.5 into R. That is 2. 5. 2.5 into 5. 12.5. Okay. Here input is 25 watt, output is 12.5 watt. Okay, see this. I is equal to E upon R plus R. I is equal to E upon R plus R. That is I is equal to 2 ampere. I is equal to 2 ampere. It means P is equal to P input is equal to VI. V is equal to 10 into 2, that is 20 watt. And P output is equal to I square R. That is 4 into 3, that is 12. Okay. See. अब मैं क्या बताना चाहता हूं वो देखिए. कहते हो सर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपने मतलब आप बताना चाहते हैं. हमें भाई बेसिक मालूम है, आई निकालने का फॉर्मूला I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होता है. भाई आप लगाइए I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. I निकल जाएगा. P इनपुट का फॉर्मूला VI होता है, वो भी हमने निकाल लिया. P आउटपुट का फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है, वो भी हमने निकाल लिया. मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समझिएगा, बहुत ध्यान दीजिए. देखिए हो क्या रहा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 था तो इनपुट क्या था 40 और आउटपुट क्या था 8. अगर हम इफिशिएंसी निकालें, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट निकालें. क्या निकालें? आउटपुट अपॉन इनपुट. तो क्या निकल के आती है जरा देखिएगा. आउटपुट है 8 अपॉन 4 इंटू 100. पकड़ लीजिए, नहीं सॉरी, 8 अपॉन 40 इंटू 100 परसेंटेज में निकाल लेते हैं. ठीक है, क्या आया भाई? दैट इज 20%. क्या है इफिशिएंसी? 20%. इसकी इफिशिएंसी निकाल लेते. इसकी इफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट 12.5, आउटपुट 12.5, इनपुट अगर हम बात करें तो सर इनपुट तो आपकी 25 थी और इंटू 100 यानी ये आ जाएगी 50%. ओके, अब हम इसकी इफिशिएंसी की बात. इसकी इफिशिएंसी अगर हम निकालने बैठते हैं तो आउटपुट कितनी है 12, इनपुट कितनी है 20 इंटू 100, that is 5, that is 60%. देखिए मैं सिखाना ये चाहता हूं कि अगर हम गौर करें कि इसकी इफिशिएंसी 50% है लेकिन इसकी इफिशिएंसी क्या है 60%. बैटरी की इफिशिएंसी कभी ये नहीं बताती कि वो पावर कितनी देगी. हो सकता है बैटरी की इफिशिएंसी ज्यादा हो, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं. इफ वी इंक्रीज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इफिशिएंसी जो होगी वो 60% से 70%, 90%, 99% चली जाएगी, लेकिन उसमें आउटपुट क्या होगा? कम होता चला जाएगा. तो ऐसी इफिशिएंसी की क्या जरूरत है जिसमें हमें आउटपुट ही ना मिले. ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए. बैटरी की इफिशिएंसी और पावर ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें सेम नहीं है. इस पूरे सिस्टम, इस पूरे इलास्ट्रेशन के अंदर मैं ये बताना आपको चाहता था कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक, कौन सी लिमिट तक? व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r पर पावर मैक्सिमम होती है. लेकिन उसके बाद जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इफिशिएंसी बढ़ती है लेकिन पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, तो नाउ देयर आर टू थिंग्स, इफिशिएंसी
और पावर, दो अलग अलग, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ओके, किसी एक बैटरी की इफिशियंसी और पावर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, याद रहेंगी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक अच्छा, और इसके बाद इसका नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम पावर चाहते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है। अगर कैपिटल आर की वैल्यू उसके बाद बढ़ाई भी जाए तो इफिशियंसी बढ़ सकती है, लेकिन पावर, आउटपुट पावर नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है, नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी बात थी, इसको जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये आता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ जरूरी नहीं है कि आपकी इफिशियंसी बढ़े या पावर बढ़े। इफिशियंसी बढ़ सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी पावर बढ़े, ठीक है। चलिए आज हम इसके बाद ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचेंगे पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच। पावर and external resistance. This is power, this is external resistance R, and the graph is like this. Power is maximum, power is maximum when small r is equal to capital R. When small r is equal to कैपिटल आर, पावर तब मैक्सिमम होगी जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पावर डिसिपेटेड एंड कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये ग्राफ तैयार भी करना है और समझना भी है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ऐसा ग्राफ हो, याद रहे तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। नाउ व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन इफिशियंसी and external resistance? We are seeing that when we increase the external resistance, efficiency also increases, but after certain time we increase the resistance but efficiency will be 99.99%, then ये increase नहीं होगी, ये वहीं पर constant हो जाएगी इस तरह से। पूरी बात समझ आती है। Now the graph between capital R and infinity is like this, and the graph between power and resistance जो हमने अभी इसके पहले आपको बताया, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। रफ करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं भाई, आप लोग को याद है कि नहीं। पॉजिटिव निगेटिव कोई दिक्कत। E1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू आल्सो 2 वोल्ट। नाउ द टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट इज 4 वोल्ट। ये सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सपोर्टिव बैटरी, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके, चलिए नाउ द क्वेश्चन इज, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए लेट अस सपोज आपके पास 3 बैटरीज है, E1 और इसमें जो रेजिस्टेंस है R1 है और ये E2 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 और ये थर्ड बैटरी E3, इसकी रेजिस्टेंस R3। ये तीनों जो हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, मान लो जो सर्किट में करंट है वो I जा रही है। कितनी जा रही है, I। इस तरह से पूरे सर्किट में करंट जा रही है। अच्छा क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। अगर ये सपोर्ट कर रही है तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई,
टोटल ईएमएफ की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगर हम इसको E इक्विवेलेंट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट लिख दें तो आपको कोई समस्या तो नहीं होगी, ठीक है। नाउ I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट E1 E2 E3, ये सपोर्ट कर रही है क्या अपोज कर रही है? सपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल आर वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब स्मॉल आर रेजिस्टेंस देखिए, सारे सीरीज में है, सीरीज में आप जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 R है। ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या होगा भाई? इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में I इज इक्वल टू सिग्मा EI अपॉन कैपिटल R प्लस सिग्मा RI, ठीक है। सारे जितने हैं सबका समेशन। लेकिन ये बात यहाँ याद रखनी है कि सारी बैटरियां एक दूसरे को क्या कर रही हो? सपोर्ट कर रही हो। क्या कर रही हो? सपोर्ट, ठीक है। अगर n आइडेंटिकल बैटरी है, कितनी आइडेंटिकल बैटरी है? n 5 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस स्मॉल n R। n आइडेंटिकल बैटरी जो होंगी उनका ईएमएफ NE हो जाएगा, आइडेंटिकल है, सबका E है तो NE हो जाएगा और सबका रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये देखिए पहला नोट कर लीजिए फटाफट, कॉम्बिनेशन ऑफ से चलिए नेक्स्ट, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, बट यहां पर n बैटरी जो क्या है, हमारी जो n बैटरी है, हमारे पास जो बैटरी है वो टोटल n बैटरी हमारी सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें से m बैटरी को रिवर्स कर दिया, जिसमें से m बैटरी को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, जिसमें से m बैटरी को रिवर्स कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, ध्यान से सुनिएगा। और अभी आपको 1 मिनट में इसको लगवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। E3 R3 डॉट 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 EN R, ठीक है, कुछ इस तरह का है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ बैटरी जो है वो n है, जिसमें से m को क्या कर दिया गया है? रिवर्स कर दिया गया है। कितनी क्या कर दिया गया है? रिवर्स। m को रिवर्स कर दिया गया। टोटल बैटरी है E, आपको I की वैल्यू निकालनी है जब वो सब सीरीज में कनेक्टेड हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। बात समझ में आती है? अच्छा, आपने एक अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। बोलो बात समझ में आती है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास 10 बैटरी थी, टोटल बैटरी कितनी थी? 10, जिसमें से 2 को पलट दिया। अच्छा, अगर हम 2 को पलट देंगे तो 2 अपोज करेंगे, और वो 2 अपोज करेंगे, जो 2 सपोर्ट करेंगे उनको कैंसिल कर देंगे। मतलब आप समझो, लेट अस सपोज हमारे पास 5 बैटरीज है। कितनी बैटरी है? 5। बहुत सिंपल सा बेसिक समझिए, सारा आइडेंटिकल है। सबसे पहली बात ये भी आइडेंटिकल ही कर दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो गई है, इसको आइडेंटिकल रखिएगा। हमारे पास n आइडेंटिकल बैटरी है, n आइडेंटिकल बैटरी में m बैटरी को क्या कर दिया गया है? और रिवर्स कर दिया गया। मान लीजिए इसको ऐसे, n की वैल्यू को हम माप पकड़ लेते हैं 5। क्या पकड़ लेते हैं? 5। हमारे पास 5 बैटरी है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। कितना है बेटा? स्मॉल r। चलो भाई, आइडेंटिकल है, सबका r है, सबका e है, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से 2 बैटरी को पलटते हैं। अच्छा, 2 बैटरी जिनको पलटेंगे वो आने वाली 2 बैटरी के साथ 0 कर देंगे और बचेगी कितनी बैटरी? 1। तो यानी जो E इक्विवेलेंट होगा, जरा गौर से सोचना ध्यान से, वो NE माइनस 2M होगा कि नहीं होगा? यानी N माइनस 2M, यानी ये कह सकते हैं कि N में से 2M जो हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इंटू E, यही तो होंगे कि नहीं? n टोटल नंबर m जितनी रिवर्स की उसका डबल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रिवर्स वाली बैटरी दूसरी वाली बैटरी को कनेक्ट करेगी, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n माइनस 2M E। अच्छा, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? अरे सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा का वैसा रहेगा। तो क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। क्या हो जाएगा? NR। तो आंसर क्या आएगा? I इज इक्वल टू
n माइनस 2m e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल n r। ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या कहता है, जब कितनी बैटरी, n बैटरी सीरीज में ऐड हो। n कैसी बैटरी होनी चाहिए, आइडेंटिकल बैटरीज किसमें ऐड होनी चाहिए, सीरीज में। और उसमें से कितनी बैटरी को, n बैटरी को क्या कर दिया जाए, रिवर्स। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, n माइनस 2m, n माइनस 2m इंटू ई, और रेजिस्टेंस तो वही का वही रहेगा। ठीक है, ये आई निकाल लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और करंट निकालने के बाद सब कुछ निकाला जा सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो इसको रफ करते हैं। अच्छा एक और बात, चलो अभी बताते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर लेते, ध्यान दीजिए। E1 R1 E2 R2, अच्छे से देखिएगा। अभी हम 2 के लिए करा दे रहे हैं, 2 से 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, आपको सब करना आना चाहिए। ठीक। अच्छा हम ये मान लें कि यहां से आई करेंगे। अच्छा ये आई जो गई है ये यहां पर आकर I1 और I2 में डिवाइड होगी, हाँ है ना। अच्छा एक सर्किट ये वाला मान लें क्लोज सर्किट, और एक ये वाला मान लें, मतलब एक हम ऊपर वाला ऐसा क्लोज सर्किट मान लें, इस पॉइंट को मान लें, कंसीडर कर ले कुछ भी, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। ए से वापस ए पर आए, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। चलिए जरा ऊपर से आते हैं, ठीक है, ऊपर से जरा देखिए, हम इधर आ रहे हैं। इधर आप करंट किस तरफ फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये रेजिस्टेंस का कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस का कैसा होगा, नेगेटिव, और ये बैटरी का कैसा होगा, नेगेटिव, और ये बैटरी का कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ हम इधर आ रहे हैं, इधर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये रेजिस्टेंस का कैसा होगा, नेगेटिव। अब हम ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो सर्किट है जिसे सर्किट 1 कहा गया, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्लोज लूप का लॉ लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट से चालू होते हैं। तो आप कहेंगे I1 R कहां से आ रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस। ओके, आप देखिए E1 कहां आ रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ, तो E1। यहां कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ। पक्का माइनस से प्लस की तरफ, बिल्कुल माइनस से। हाई पोटेंशियल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले सर्किट के लिए क्या हुआ, कोई दिक्कत, इस पिछले लेक्चर में इसको पढ़ाया जा चुका है। आई आर वन प्लस से कहां गए, माइनस, माइनस से कहां गए, प्लस, और हाई पोटेंशियल से कहां गए, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से कहां गए, नेगेटिव। ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा अब हम दूसरे सर्किट की बात करें, नीचे वाले सर्किट की बात करें, तो उसमें भी गौर करिए, माइनस IR2 है कि नहीं है, और प्लस E2 होगा कि नहीं होगा, और माइनस IR होगा कि नहीं होगा, क्या ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। चलो भाई इसको यहां से रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये लो भाई, ठीक। अच्छा आप देखिए जरा, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। थोड़ा सा और करना है, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ मल्टीप्लाई कर, अच्छा इसमें जो करंट गई थी वो I1 थी, और इसमें जो करंट थी वो क्या थी बेटा, I2। ये थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया, I1 R1 और I2 जरा देखते फिर से, क्या हम करें R1 का पूरे इक्वेशन में डिवाइड करें, तो R1 का इक्वेशन फर्स्ट अगर जब डिवाइड करेंगे तो माइनस I1 प्लस E1 अपॉन R1 माइनस I कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कोई दिक्कत वाली बात, इसको इक्वेशन 3 लिख दें। अच्छा दूसरे वाले को देखो, माइनस I2, कोई समस्या, R2 का डिवाइड किया है, दूसरे वाले में किसका डिवाइड किया है,
R2 का, इसमें किसका किया है R1 का। चलिए भाई I2 इज इक्वल टू I2 प्लस E2 बाय R2 माइनस IR अपॉन R इज इक्वल टू 0। ये भी ध्यान देने वाली बात है, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई अब हम इक्वेशन को ऐड करें। इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें, या इन दोनों को उधर भेज दें, इवन को ऐड करें। तो क्या लिखेंगे यहां पर I1 प्लस I2 जो कैसी होनी चाहिए, निगेटिव, प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और माइनस IR कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस वाले टर्म को उधर भेज दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। माइनस वाले सारे टर्म को उधर भेज दिया। अच्छा I1 और I2 दोनों मिलकर क्या बन गई, I1 और I2 क्या है, I के बराबर है। तो हम एक बात तो कह सकते हैं बेसिक, जिसे कहते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू IR I प्लस IR 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखिए ये वाला टर्म उधर ले गए हैं, ये आई हो गया, ये वाले वैल्यू क्या हो गई आई हो गई। अब उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये पहले लिख दिया, ये वाला टर्म बाद में लिख दिया। अच्छा अब थोड़ा और गौर करो, और गौर करें तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I कॉमन ले ले तो 1 प्लस R इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये बाहर आ गया। अब हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, I की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस कैपिटल R इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। अगर 3 होते, अगर कितनी बैटरी होती है 3, जिसके EMF E होते हैं, तो क्या लगाते हैं I इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। n होते तो n तक ले जाते, 3 का दिखा दे रहे, 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये करंट निकालने का फॉर्मूला पैरेलल में, ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है, यानी सीबीएसई बोर्ड इसको पूछता है, इसलिए इसको कराया गया है ये डेरिवेशन। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत कठिन नहीं था। 2 बैटरी थी E1 और E2 जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 थे, इनको किसमें कनेक्ट कर दिया था, पैरेलल में एक दूसरे से कैपिटल R रेजिस्टेंस से। हमने ये माना कि यहाँ से जो करंट प्रोवाइड हुई थी I थी, I पहले R में गई और यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुई, I1 और I1 ऊपर वाले से गई, I2 नीचे वाले से। एक बार ऊपर वाला सर्किट सॉल्व किया, एक बार नीचे वाला सर्किट सॉल्व किया, दोनों को 0 किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, I की वैल्यू निकाली। ठीक है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। चलिए अब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जितने भी हो सब आप कर लेंगे। थोड़ा ध्यान देना है इसको, ठीक है बेटा। थोड़ा अच्छा पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। कितने भी से लो आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अच्छा एक